So thank you so much for all of you to join on time. A very good evening once again. We have Dr. Yash Desai with us today. It's the series that we have started a couple of months ago where we are inviting experts to come and guide us on the work that we are already doing, to inspire us, to polish us every day, because we come across children with different challenges and we need consistent guidance and support. Hi, this is Bala Saraswati. I'm an LD remedial coach and I'm on a mission to make top class remedial educators for this country. Thank you, Ruchi, Pooja, Mubashira, Rupa, Patricia, Shishwini, Hamsa, Nikunj, Munira, Arzu, and all those who are joining, Swapna, Shaila, Carol. Thank you so much for joining on time, as we are always very punctual in starting our event. And Dr. Yash Desai is already there. I would like to welcome Dr. Yash Desai to this platform. He is an occupational therapist. He is been working for, there's hardly few people who are working for autism. And he's somebody who's been dedicatedly working for children with autism. He's oral placement therapist. I personally do not know what the roles of this is, and I'm sure Dr. Yash Desai is going to highlight us on what exactly is the role of a therapist like this and how it can change and transform the lives of these kids. He's OPT, occupational therapist, cognitive behavior life coach, and expert in ASQ and ASQSE. Dr. Desai, I really don't know what this means, and I would love you to tell us more about it. And then before Dr. Desai switches on his mic, I would want all of you to be on camera. 1, 2, 3. Let me see how many of you can make it before 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So all of you can remain on camera from here on. Once again, good evening. Over to Dr. Desai. Dr. Desai, I'll be just giving you screen share too. Thank you, and over to you. Oh yeah, you could get screen share, right? Dr. Desai, are you facing any problem? Good evening, everyone. Good evening, sir. हाँ, मैं मैम का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया और सबको अवेयर करने का मौका दिया सेंसरी प्रोसेसिंग एंड स्पीच के रिलेटेड बात करने के लिए। मैं मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। So can you be on camera? We can't see you actually. आपका कैमरा ऑफ है? Okay. Are you functioning from the phone? Yes. Okay. So today my topic is sensory processing and making the connection. यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग और
क्या हम आप सर एक्सक्यूज मी, क्या हम आपको देख नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वी कैन सी यू। या तो आप पीपीटी देख पाओगे या आप मेरा फेस देख पाओगे। ओ ओ, और हमें दोनों देखना है। कैमरा तो ऑन है, पर पीपीटी ऑन होते ही ओनली माय वॉइस। अगर आप चाहते हो तो विदाउट पीपीटी में स्टार्ट करूं, और अगर आप चाहते हो तो विद पीपीटी स्टार्ट करूं। वॉट एवर सूट्स यू, आपको जो ठीक लगे, आप जो बेस्ट करे वो हमारे लिए वेलकम। देन आई एम गो विद पीपीटी। क्या थैंक यू। पीपीटी पर आपको कोई क्वेरी हो तो बीच में पूछ सकूं। परफेक्ट। सेंसरी प्रोसेसिंग एंड स्पीच मेकिंग द कनेक्शन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है और उसका कनेक्शन स्पीच के साथ और कम्युनिकेशन के साथ कैसे होता है। अगर हमें सेंसरी प्रोसेसिंग के बारे में जानना है तो हमें बेसिक 3 वर्ड हैं जो पहले जान लेने जरूरी हुई, जैसे कि सेंसरी प्रोसेसिंग, फिर दूसरा वर्ड है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एंड थर्ड वर्ड इज सेंसरी बिहेवियर। हमने अगर ये 3 वर्ड समझ लिए तो आगे सेंसरी प्रोसेसिंग के बारे में समझना आसान हो जाएगा। Sir, your voice is not audible. Now my voice is clear. Yeah, it's better, sir. Okay. What is sensory processing? A sensory processing is a process कि जिससे हम एनवायरमेंट में से हमारे सेंस सारे इंफॉर्मेशन गैदर करती है और फिर उसे ब्रेन में ले जाके प्रोसेस करती है और उसे डिवाइड करती है, और हमें पता चलता है कि हमने कौन से सेंस या कौन सी फीलिंग का अनुभव किया है, उसे कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग। और उसके लिए हमारे पास है सेंसरी सिस्टम लाइक विजुअल, यानी कि विजन देखने के लिए और विजुअल समझने के लिए और सामने क्या है वो जानने के लिए, उसे कहते हैं विजुअल सेंसरी सिस्टम। दूसरा है ऑडिटरी, यानी कि हम सुन के जो सेंस ब्रेन में प्रोसेस होता है वो है ऑडिटरी सिस्टम। तीसरा है ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ऑल्फैक्टरी सिस्टम मतलब कि हमें कोई भी स्मेल आती है, हम सूंघते हैं, या फिर हमें कोई भी चीज पता चलती है कि हाँ ये गुलाब का खेत है, तो उसके लिए होता है ऑल्फैक्टरी सिस्टम। फिर दूसरा है गैस्ट्रेक्टोमी सिस्टम, यानी कि टेस्ट रिलेटेड जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग पे, वो गैस्ट्रेक्टोमी सिस्टम के अंदर आते हैं, जिसकी मदद से हमें टेस्ट का नॉलेज पता चलता है, जो हमारे ब्रेन में टेस्ट रिलेटेड रिसेप्टर्स ले जाते हैं और हमें समझाते हैं कि कैसे और कौन सा टेस्ट है ये। फिर है टेक्टाइल सिस्टम, यानी कि टच रिलेटेड, कि हम बार बार किसी चीज को टच करें और उसका फील हमें पता चले, तो वो है टेक्टाइल सिस्टम। दूसरा है वास्टिबुलर सिस्टम। वास्टिबुलर सिस्टम हमारे ब्रेन, हमारे मिडल ईयर के पीछे जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड को कहते हैं वास्टिबुलर फ्लूइड, और वास्टिबुलर फ्लूइड बनाता है वास्टिबुलर सिस्टम, जो मूवमेंट, बैलेंसिंग, वॉकिंग, रनिंग वगैरह पे कंट्रोल करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम। प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम यानी कि हमारे मसल और जॉइंट की मूवमेंट, स्टेबिलिटी और बॉडी पोजिशनिंग में वर्क करता है, जिसे बोलते हैं प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम। अब है व्हाट, अब हमें जानना है व्हाट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि हमारे ब्रेन में जो सिस्टम है वो ये सारी प्रोसेस करने में स्लो हो जाए या हाइपर हो जाए, जिसकी वजह से हम प्रॉपर सेंस को रिकॉग्नाइज ना कर सके और इनपुट हमारे ब्रेन में और आउटपुट जो आएगा सेंस का वो प्रॉपर ना आए, उसे कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हमें बहुत तरीके से होते हैं, सारी सेंस में एक साथ भी हो सकता है, या फिर कोई एक सेंस में हो या कोई 2 सेंस में हो। जरूरी नहीं कि एक साथ सारी सेंस में ही हो, या ना हो तो कोई सेंस में भी ना हो। फिर है व्हाट इज सेंसरी बिहेवियर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से हमारे बिहेवियर डेवलप होता है, क्योंकि हम हमारे ब्रेन में जो सेंस
रिकॉग्नाइज होती है और प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा आता है, कुछ कम आता है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर टच या कोई पर्टिकुलर और चीज का ब्रेन में ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ओवरलोड हो रहा है, या फिर वो अंडर उनका सेंस काम कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें उतना फील नहीं आ रहा है जितना उन्हें आना चाहिए। उसकी वजह से उनका एक बिहेवियर डेवलप होता है, जो हमें बिहेवियर के रूप में दिखता है, उसे कहते हैं सेंसरी बिहेवियर। देर आर there are 6 type of sensory behavior. First is hypersensitive behavior, यानी कि जितने भी हमने सेंस देखे हैं वो सारे सेंस में से कोई भी एक सेंस या सारे सेंस के प्रति ज्यादा प्रतिभाव होना। यानी कि अगर किसी बच्चे को टच रिलेटेड सेंसरी इश्यूज हैं, अगर वो टच करता है तो उसे नॉर्मल से ज्यादा फीलिंग आती है, जिसकी वजह से वो हाइपर बिहेव करता है, जिसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिव बिहेवियर। दूसरा है हाइपोसेंसिटिव बिहेवियर। हाइपोसेंसिटिव बिहेवियर यानी कि अंडर रिस्पॉन्सिव, हमारे ब्रेन में सेंस की प्रोसेस थोड़ी कम हो जाती है। कम हो जाती है मतलब कि नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड में प्रोसेस करता है और फिर उसकी कम हो जाती है। यानी कि अगर किसी बच्चे को, जो नॉर्मल बच्चा है, उसे हमने एक पेन मारी तो वो रोने लगेगा। और अगर हाइपोसेंसिटिव चाइल्ड है और हमने उसे अगर पेन या सुई चुभोई तो शायद ना रोए, क्योंकि उसे उसे उस पेन का असर पता ही नहीं चला, क्योंकि वो हाइपोसेंसिटिव है। फिर है सेंसरी सीकिंग, यानी कि उसे पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर लाइट, पर्टिकुलर टेस्ट, पर्टिकुलर टच या पर्टिकुलर मूवमेंट का क्रेविंग होगा। यानी कि वो बार बार उसे वो टच, फीलिंग, टेस्ट चाहिए अपने आप को काम डाउन करने के लिए। इसलिए उसे कहते हैं सेंसरी सीकिंग बिहेवियर। फिर आता है सेंसरी डिफेंसिव बिहेवियर। व्हाट इज सेंसरी डिफेंसिव बिहेवियर? अगर कोई बच्चा सेंसरी हाइपर सेंसिटिव है और उसका वो सेंसरी बिहेवियर बार बार ट्रिगर हो रहा है, तो क्या होगा कि उसका ब्रेन कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक एंड समझने लगेगा कि हाँ, ये सेंस अब मेरा ट्रिगर होने वाला है। तो वो सेंस को ओवरकम करने के लिए दूसरा कंपनसेटरी सेंस ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा और वो अपने ट्रिगर सेंस को कवर कर देगा और डिफेंस करेगा। इसलिए उसे कहते हैं सेंसरी डिफेंसिव बिहेवियर। जैसे कि हम ट्रेन में जा रहे हैं और वास्टिबुलर यानी कि मूवमेंट रिलेटेड सेंस उसकी बार बार ट्रेन के आगे पीछे होने की वजह से ट्रिगर हो रही है, तो क्या होगा, वो बच्चा अपनी बॉडी को टाइट कर लेगा और अपनी बॉडी को स्टीडी रखने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसका प्रोप्रायोसेप्टिव जो सेंस है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और डिफेंस मोड को वास्टिबुलर सिस्टम को ओवरकम करने की ट्राई करेगा with use of proprioceptive movement. The fifth one is mixed sensory. Mixed sensory यानी कि सारे बच्चे सारे सेंस में ना हाइपर होते हैं ना हाइपो होते हैं। कुछ बच्चे कुछ सेंस में हाइपर हैं या कुछ में हाइपो हैं। वो उनका मिक्स बिहेवियर होता है कि कभी कभी वो हाइपो की तरह दिखते हैं कुछ सेंस में और कुछ सेंस में हाइपो की तरह दिखते हैं। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग, यानी कि पर्टिकुलरली वन सेंस में उनका बिहेवियर डे बाय डे फ्लक्चुएट होता रहता है कि आज हाइपर दिखे तो कल सीकिंग दिखेंगे तो परसों हाइपो दिखेंगे। तो उनका बिहेवियर फिक्स नहीं होता है, वो फ्लक्चुएट दिन ब दिन होता रहता है, इसे उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर। यहाँ तक सबको सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you explain sensory seeking once again? Okay. Now, what is a Sensory seeking को explain करोगे? What? Sensory seeking. Can you please explain sensory seeking once again? Yes. Sensory seeking means उसे पर्टिकुलर सेंस के बारे में ज्यादा नीड होगी। यानी कि अगर किसी बच्चे को टेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो
उसे पर्टिकुलर टेस्ट बार 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 चाहिए होगा। अगर टच रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसे बार बार टच चाहिए होगा। और अगर वो बच्चा को वो टच नहीं मिलता है तो वो बच्चा फिर अनकंफर्टेबल फील करेगा, इसलिए उसे वो अपने आप को काम डाउन और मेल्ट डाउन करने के लिए वो सेंस बार बार चाहिए, इसलिए उसे कहते हैं सेंसरी सीकिंग बिहेवियर। गॉट इट? Yes, doctor. Okay. Now we are moving to the another topic. What is sensory motor dysfunction? सेंसरी मोटर डिसफंक्शन यानी कि हमारा जो सेंसरी प्रोसेस है वो सेंसरी प्रोसेस बराबर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी की मोटर मूवमेंट्स होती है यानी कि रनिंग, वॉकिंग, राइटिंग, जंपिंग, पंचिंग वो वगैरह डिले होती है, क्योंकि वो ब्रेन की प्रोसेस के साथ मीटअप नहीं कर पाती है। यानी कि अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस स्पीड स्पीड में चलती रहेगी और उस हिसाब से उसकी बॉडी और मोटर मूवमेंट उसे कोप अप नहीं कर पाएगी। और अगर वो अंडर रिस्पॉन्सिव है, हाइपो, तो मूवमेंट हो जाएगी पर थिंकिंग प्रोसेस बाद में आएगी, जिसकी वजह से सेंसरी मोटर डिसफंक्शन डेवलप होता है। यानी कि थिंकिंग प्रोसेस एंड मोटर प्लानिंग प्रोसेस दोनों एक साथ काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से स्पीच इश्यूज, रनिंग इश्यूज, लेट वॉकिंग, च्यूइंग इश्यूज, फीडिंग इश्यूज वगैरह बहुत सारे इश्यूज देखने मिलते हैं। अब मैं आपको ये समझाना रहा हूँ कि सेंसरी मोटर, सेंसरी प्रोसेसिंग, सेंसरी बिहेवियर सब एक साथ मिलके एक साथ कैसे एक बच्चे पे असर करते हैं और कैसे दिखते हैं। ये बेसिकली हमें उस बच्चे में बिहेवियर ही दिखेगा, but every behavior is not a behavior, bad behavior, sometimes it's sensory। तो अगर बच्चे को सेंसरी इश्यू है तो उसकी सेंसरी पार्ट या सेंसरी सिस्टम ट्रिगर होगा। तो ट्रिगर होने की वजह से उसका मोटर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन यानी कि ब्रेन एंड सेंसरी सिस्टम एंड मोटर कोऑर्डिनेशन ब्रेक होगा, जिसकी वजह से वो सोशली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा और बार बार वो डिले होता जाएगा, या फिर वो सोशल एंजाइटी फील करने लगेगा, क्योंकि उसकी मोटर प्लानिंग अपने पीएस के जैसी नहीं है और वो प्रॉपरली मोटर प्लान नहीं कर पा रहा है अपनी सेंसरी प्रोसेसिंग डिले की वजह से। और वो हमें दिखता है बिहेवियर के रूप में एंगर, क्राइंग, वॉमिटिंग, हेड बैंगिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So every behavior is not a bad behavior. Sometimes it's sensory issue. ध्यान से देख लो, ये एक सेंसरी बिहेवियर चाइल्ड का डेली रूटीन है कि कैसे वो डेली एक्टिविटी फेस करता है और क्या क्या उसे दिक्कत आती है। तो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, ये फोटो को ध्यान से देख लीजिए और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर इनमें से अगर सारी की सारी या कुछ मैक्सिमम चीजें हो लेकिन मॉडरेट हो, कभी दिखती हो कभी ना दिखती हो, तो उसका क्या मीनिंग है और उसे कैसे टैकल करें? हाँ, वो फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर में आता है कि कभी कभी दिखती है कभी कभी नहीं दिखती है। फ्लक्चुएटिंग के कुछ फेजेस में तो उसे कंपनसेटरी बिहेवियर सिखाना पड़ेगा कि जब उसे ये फील हो तो कंपनसेट कैसे कर पाए, और उसके लिए रिवर्सिबल बिहेवियर एंड रिप्लेसमेंट बिहेवियर मेथड आती है। सर चूंकि रिपीटेशन नहीं है तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती है बिहेवियर सिखाते वक्त, तो वो कैसे मेंटेन करें?
वो बिहेवियर हम खुद तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो जो बच्चे का इशू हो रहा है, और हम Yes. दिखाने के लिए वो कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आज बच्चा दिखाएगा, हो सकता है 15 दिन बाद दिखाएगा। तो और बच्चा समझने की लेवल पे नहीं है कि रोज हम उसकी वही काउंसलिंग करें, तो फिर कैसे टैकल किया जाए? तो उसके लिए होता है सेंसरी डाइट प्रोग्राम, जो मैं आगे समझाऊंगा। पर बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि होम मॉडिफिकेशन कर दो, जिसकी वजह से बच्चे का जो सेंसरी बिहेवियर है वो ट्रिगर ही ना हो, और उसकी डेली एक्टिविटी और होम मॉडिफिकेशन ही ऐसा हो जाए जिसकी वजह से कुछ करना ही ना, से कुछ ट्रिगर ही ना हो, Hello, sir. और उसका ओके एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ही थोड़ा चेंज हो जाए। Sir, good evening, sir. ओके May I थैंक यू सर। request all of you to allow sir to finish the topic so that we can get all the questions in the end. Otherwise, it will get delayed. Thank you, Sapna and Soni. Sir, please continue. Now we are going ahead. Sensory processing disorder and speech making the delay. अब हम या कोई भी बच्चा कोई लैंग्वेज और स्पीच कैसे सीखता है, तो एनवायरनमेंट में से कुछ वर्ड्स को ऑडिटरीली सुनकर और विजुअली उस वर्ड का रिफ्लेक्शन देखकर और बार 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 प्रैक्टिस करने के बाद वो बच्चा सीखता है एक लैंग्वेज। पर अगर बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है या फिर सेंसरी मोटर डिसफंक्शन है, वो अंडर या ओवर रिस्पॉन्सिव होगा हर सेंस के प्रति, तो उसके विजुअल, ऑडिटरी, टच, कोई भी सेंस इतने कैपेबल नहीं होंगे कि उसे उस सेंस के ओवरलोड को कम करके कोई लैंग्वेज सीखने के लिए उसे रेडी करे, उसके ब्रेन को रेडी करे और रिपीटेशन करवाने के लिए उसे ट्रेन करें। और अगर ज्यादातर बच्चों में देखा जाए तो जिस बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, वो बच्चों में ज्यादातर सेंसरी मोटर डिसफंक्शन या फिर ओरोमोटर डिसफंक्शन देखा जाता है, यानी कि उनका ब्रेन कोप अप ही नहीं कर पाता है मुंह के रिलेटेड मोटर मूवमेंट्स को एक साथ या अलग अलग रूप से देने के लिए। जैसे कि वैसे बच्चों में बेसिकली देखा जाता है डिले और इनएडिक्वेट च्यूइंग, यानी कि ये चबाना सीखते हैं या फिर चबाना वो आता ही ना हो। फीडिंग इश्यूज तीन तरह के होते हैं। एक रिफ्लेक्स रिलेटेड, यानी कि अगर ज्यादा टेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं तो गैग रिफ्लेक्स बहुत टंग के आगे होगा, जिसकी वजह से खाना रखते हुए वॉमिटिंग करने लगेगा। दूसरा च्यूइंग रिलेटेड इश्यूज, कि बार बार कोई चीज चबाना फिर भी निगल ना पाना, या फिर चबाते 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 चबाने के बगैर ही निगल जाना। तीसरा होता है हाइपोसेंसिटिव फीडिंग इश्यूज, यानी कि मुंह में खाना है उसकी फीलिंग ही ना होना और मुंह में खाना जमा करके रखना, उसे कहते हैं हाइपोसेंसिटिव फीडिंग इश्यूज। फिर आता है हाई और लो गैग रिफ्लेक्स। फिर आता है लो लिप एंड जॉ क्लोजर, यानी कि हमारे जो फेशियल है उसमें जॉ और लिप दोनों को प्रॉपर अमाउंट में प्रेशर दे के बंद होना होता है। पर अगर हमारी प्रोप्रासेप्टिव सिस्टम, यानी कि जॉइंट एंड मसल को जो प्रेशर देने वाले सिस्टम है वो ही अगर वीक हो, तो जॉ एंड लिप का प्रॉपर क्लोज होना नहीं हो सकता है। फिर आता है जॉ फिक्सेशन। जॉ फिक्सेशन यानी जो बच्चों को प्रेशर के रिलेटेड सिकिंग बिहेवियर हो, वो बच्चे प्रेशर डेवलप करने के लिए कभी कभी मुंह ओपन पोजीशन में फिक्स रखते हैं या फिर क्लोज पोजीशन में फिक्स रखते हैं, जिसकी वजह से जॉ फिक्सेशन मोड में चला जाता है। रिस्ट्रिक्टेड टंग मूवमेंट्स, यानी कि अगर हम कभी कुछ बोलते हैं तो हमारी टंग की मूवमेंट फ्लुएंटली होती है, यानी कि हमें अगर ट बोलना है तो हमने टंग को ऊपर ले गए, राउंड किया, पीछे ले गए और ऊपर वापस टच किया, तो इसे ये फ्लुएंसी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम वर्किंग वेरी वेल। बट जो जिनका सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता है, उन्हें टंग प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से वो स्टैमरिंग या फिर ट की जगह त बोलना या ठ की जगह थ बोलने जैसी प्रॉब्लम से सफर करते हैं। ब्लोइंग एंड सकिंग इश्यूज, अगर
सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम बच्चों का वीक है तो मल्टीटास्किंग चीज नहीं कर सकते। ब्लोइंग और सकिंग के लिए पहले मुंह को लिप राउंड करना पड़ेगा, फिर इनहेल या एक्सहेल करना पड़ेगा। वो दो चीज एक साथ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे ब्लोइंग और सकिंग सीख ही नहीं पाते हैं। एट द एज ऑफ 5, restricted lip and jaw movement and restricted dissociation and association of lip, tongue and jaw, यानी कि कब जॉ, लिप और टंग को एक साथ यूज करना है या कब उन्हें अलग अलग यूज करना है। अलग अलग वर्ड के हिसाब से इनकी यूज भी एक साथ या अलग अलग अपने वर्ड के हिसाब से होती है, पर ये लोग ये अलग ही नहीं कर पाते हैं कि कब इन्हें एक साथ यूज करना है या कब इन्हें अलग अलग यूज करना है। हाउ टू इवेल्यूएट सेंसरी एंड सेंसरी मोटर डिसफंक्शन। अब हमने ये तो देखा कि ये सारे प्रॉब्लम्स हम बच्चों में देखते हैं या समझते हैं और हमने समझा, पर हमें पता कैसे चलेगा कि एक बच्चे में ये सब कुछ हो रहा है? वो उसका बिहेवियर है, उसकी हैबिट है, या फिर सेंसरी इश्यूज हैं। और अगर ये सेंसरी इश्यूज हैं तो आपको अपने बच्चों को तुरंत ही सेंसरी थेरापिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट को दिखाना अनिवार्य है। तो प्रॉपर उसका इवोल्यूशन असेसमेंट करें और पता करें कि कैसे ये बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और हम आगे क्या कर सकते हैं। पर ये जानने के लिए हमें ये पहले पता करना पड़ेगा कि कौन से ऐसी चीजें हम देखें बच्चों में जो देख के हमें लगे कि सेंसरी इश्यूज हैं, ना उसकी हैबिट है ना इसका बिहेवियर है ये। और ये जब भी ऑब्जर्व करो तो बच्चों के लीजर टाइम में या उसके प्ले टाइम में ऑब्जर्व करो। फोर्सफुली बच्चों को कभी बिठाकर ये सारी चीजें उसकी ऑब्जर्व नहीं की जाती। तो बच्चों में जो ऑब्जर्व करना है उसमें पहला पॉइंट है हैज ए डिफिकल्ट विद बॉडी अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस मतलब कि उसकी बॉडी आजू बाजू के एरिया के अनुरूप कैसी है। यानी कि अगर वो चल रहा है तो चलते चलते वो गिर गया तो उसे पता चलना चाहिए कि हाँ मैं गिर गया हूँ, तो दूसरी बार इस जगह से जाऊंगा तो मुझे थोड़ा हटके जाना है या फिर ऊपर से जंप करके जाना है। तो उसे बोलते हैं डिफिकल्टी विद बॉडी अवेयरनेस। फिर डिफिकल्टी टू प्लानिंग अ न्यू मूवमेंट, यानी कि अगर बच्चा बैठा और आपने बोला रन और सिटिंग पोजीशन यानी कि स्टील पोजीशन में से रनिंग पोजीशन में जाने के लिए उसे अगर डिफिकल्टी हो या फिर वो रनिंग करके आए और बैठ गया, ऐसी कोई भी दो मूवमेंट करने में एक साथ एक के बाद एक या एक साथ करने में डिफिकल्टी हो तो उसे कहते हैं डिफिकल्टी टू प्लानिंग ए न्यू मूवमेंट। फिर आता है has difficulty to knowing where his body is relation to the other objects, यानी कि जब हम चल रहे होते हैं रास्ते पे तब हमें पता होता है कि नीचे पत्थर है और सामने से गाड़ी आ रही है, तो हम उस तरह से हट जाते हैं जिसकी वजह से ना हम पत्थर से टकराएं ना सामने वाली गाड़ी से टकराएं। तो ये होता है हमारा अवेयरनेस कि बॉडी में दूसरे बॉडी का दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड में। अगर ऐसा ना हो और बार बार गिरता रहे या किससे टकराता रहे तो समझ जाना चाहिए कि उसे सेंसरी मोटर या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। चूइंग कॉन्स्टेंटली एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो बार बार किसी भी रास्ते में पड़ी चीज को खा ले या फिर अपने शर्ट के कॉलर या टी शर्ट के कॉलर को चबाता रहे तो उसे कहते हैं, तो उसे चूइंग इश्यूज हो सकते हैं। फिर कभी कभी जोर जोर से पैर पटक पटक के चले या घसीट घसीट के चले तब भी उसे सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। कभी कभी वो पेंसिल एकदम टाइट पकड़े या कभी एकदम लूज पकड़े, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा लिखे या नॉर्मल स्पीड से कम लिखे, तब भी हम बोल सकते हैं कि उसे सेंसरी प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर वो बच्चा खेलता है किसी खिलौने के साथ और बार बार उसके खिलौने टूट जाते हैं ज्यादा प्रेशर देने की वजह से या एकदम जोर से पकड़ने की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज अपने बच्चों में देखें तो
आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट या सेंसरी प्रोसेसिंग थेरापिस्ट को मिलिए और उसे बताइए, तो वो उसका एवेल्यूट कर सके, उसका असेसमेंट कर सके और पता कर सके कि क्या है, क्यों है, और ये बिहेवियर है, सेंसरी है, या फिर उसकी हैबिट है। अब मैं आपको बताया जा रहा हूँ कुछ प्रोफेशनल सेंसरी असेसमेंट, कि हर बच्चे के लिए हर असेसमेंट जरूरी नहीं होता है, या हर बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर असेसमेंट नहीं होता है। जैसे कि सेंसरी इंटीग्रेशन इवैल्यूएशन, मतलब कि वो बेसिक उसके डेली रूटीन को पूछ के, उसकी डेली एक्टिविटी को पूछ के पता किया जाता है कि उसको सेंसरी इश्यूज हैं, डेली एक्टिविटीज करने में तकलीफ हो रही है, तो क्या उसे सेंसरी इश्यूज हैं या नहीं। दूसरा है सेंसरी प्रोफाइल। सेंसरी प्रोफाइल एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें एज अकॉर्डिंग असेसमेंट फॉर्मेट होते हैं, और इसे ये पता किया जाता है कि एज अकॉर्डिंग सेंसरी और सेंसरी मोटर डेवलपमेंट एंड सेंसरी परसेप्शन डेवलपमेंट हुए हैं या नहीं, या उसकी एज से कम है या उसकी एज से ज्यादा सेंसरी डेवलपमेंट हुए हैं। द थर्ड इज सेंसरी इंटीग्रेशन एंड अप्रेक्सिक टेस्ट, जो हमने आगे देखा कि सेंसरी मोटर डिसऑर्डर होता है, तो इसी के ऊपर है ये सेंसरी इंटीग्रेशन एंड अप्रेक्सिक टेस्ट, कि कैसे किसी बच्चे को क्यों सेंसरी मोटर डिसफंक्शन है, कैसे है, और उसका आगे हम क्या कर सकते हैं। फिर एक स्कूल कंपेनियन एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें स्कूल एज के सारे बच्चों को जो डिफिकल्टीज होती है स्कूल रिलेटेड, वो सारी चीजों को लिस्ट किया गया है और उसको सेंसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, जिससे हम पता कर सके कि उसको कौन सा सेंसरी इश्यूज है या कौन से सेंसरी सिस्टम ट्रिगर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसे स्कूल में रीडिंग में, राइटिंग में, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने में, लिखने में, बोलने में, कम्युनिकेट करने में, आंसर देने में, या ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में डिफिकल्टीज हो रही है। एडोलेसेंट एंड अडल्ट सेंसरी प्रोफाइल, यानी कि बड़े बच्चों और अडल्ट लोगों के लिए भी अलग से एज अकॉर्डिंग सेंसरी डेवलपमेंट का एक अलग सेंसरी प्रोफाइल होता है। फिर सेंसरी फीडिंग इवोल्यूशन, किसी बच्चे को खाना चबाने में, निगलने में, या खाना मुंह में भरे रखने की आदत होती है, या बहुत सारे फीडिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसका इवोल्यूशन होता है सेंसरी फीडिंग इवोल्यूशन में। फिर आता है ओरल प्लेसमेंट इवोल्यूशन। ओरल प्लेसमेंट इवोल्यूशन एक ऐसा इवोल्यूशन है जो सेंसरी को स्पीच के साथ कनेक्ट करता है, और स्पीच एंड सेंसरी को जॉइन करके एक ऐसा असेसमेंट है जो ये बताता है कि चाइल्ड अभी बोल नहीं रहा है या अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, उसका सेंसरी रीजन एंड मसल बेस्ड सेंसरी मोटर रीजन क्या है, वो पता करने के लिए ओरल प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। फिर है अप्रेक्सिक स्पीच असेसमेंट, यानी कि हम कुछ वर्ड्स टंग और लिप से बोलते हैं, पर तब हम प्रेशर देते हैं। जो अप्रेक्सिक बच्चे या अप्रेक्सिक स्पीच डिले वाले बच्चे होते हैं, उन्हें वो डिफिकल्टी होती है वैसे वर्ड्स बोलने में, तो उसके फोनीम्स क्यों ऐसा नहीं बोल पाते हैं, कौन सा मसल वीक है, उसके रिलेटेड अप्रेक्सिक स्पीच असेसमेंट होता है। फिर आता है सेंसरी मसल बेस्ड आर्टिकुलेशन, ये है बेसिकली स्टैमरिंग एंड प्रॉपर फोनीम्स ना बोल पाने वाले बच्चों के लिए, जो करेक्ट वर्ड नहीं बोल पाते हैं, जैसे कि टमाटर को टमाटर या टोमेटो को टोमेटो बोलते हैं, वैसे बच्चे क्यों ऐसा बोलते हैं, किस लिए ऐसा बोलते हैं, उसका एवोल्यूशन होता है सेंसरी मसल बेस्ड एक्टिविटी इवैल्यूएशन में। ये बात की हमने इवैल्यूएशन की। उसके बाद आपके दिमाग में ख्याल आता है कि हम कैसे इतनी सारी चीजें जाने, हमने ढूंढ लिया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, पर उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हर बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज थेरापी प्लान है कि बच्चे की नीड के हिसाब से इसमें से एक, दो या सारी या तीन कितनी भी थेरापी लग सकती है, पर सबके लिए इंडिविजुअलाइज थेरापी एंड थेरापी प्लान होता है।
तो कुछ थेरापी जो सेंसरी में हम देते हैं वो मैंने नोट डाउन की हुई है, जैसे कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी यानी कि हमारे जो भी सेंस हैं, विजुअल, ऑडिटरी, टच, प्रेशर, मूवमेंट, ओरल, वो सारे सेंस को एक साथ या अलग अलग करके स्टिमुलाई करके बच्चों को एक्सपोज करके बन उसे उसको कंफर्टेबल जोन में ले जाया जाता है, जिसकी मदद से उनका बिहेवियर जो है वो सेंस के प्रति, या वो हाइपर बिहेवियर हो या अंडर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर हो, वो बिहेवियर को ओवरकम किया जा सके। दूसरा है सेंसरी डाइट, जो मैंने आगे बताया उस हिसाब से सेंसरी डाइट इज अ होम बेस्ड थेरापी, जिसमें होम मॉडिफिकेशन एंड डेली रूटीन बच्चे का देखा जाता है और उसे चेंज करके और उसकी एक्टिविटी को मॉडिफाई, उसकी डेली एक्टिविटी को मॉडिफाई करके एक प्रॉपर सेंसरी डाइट यानी कि सेंसरी डेली रूटीन बनाया जाता है, जिसमें कि वो कोई भी एक्टिविटी करे उसका सेंसरी सिस्टम ट्रिगर ना हो। फिर है सेंसरी परसेप्शन थेरापी। हम किसी की आवाज सुनते हैं या किसी को देखते हैं तो तब हमारा ब्रेन वो चीज को अब ब्रेन में ले जाता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट आता है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि क्या है वो। यानी कि सामने कोई कार आ रही है तो हमारी आंखों ने उसे देखा, ब्रेन में प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद हमें पता चला कि सामने से रेड कार आ रही है, तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग। और वो परसेप्शन यानी कि क्या आ रहा है, वो परसेप्शन के ऊपर काम करने वाली जो थियरी है कि वो क्या है, हमने सुना तो क्या सुना, हमने टच किया तो क्या टच किया, हमने हमने स्मेल किया तो क्या स्मेल किया, उसके ऊपर जो वर्क होता है उसे कहते हैं सेंसरी परसेप्शन थेरापी। फिर आता है ओरोमोटर थेरापी एंड ओरल प्लेसमेंट थेरापी। दोनों थेरापी होती है ओरल कैविटी के अंदर की। ओरल कैविटी के अंदर की जितनी भी सेंसरी इश्यूज हैं, च्यूइंग रिलेटेड, स्पीच रिलेटेड, वो सारे कवर होते हैं ओरोमोटर थेरापी एंड ओरल प्लेसमेंट थेरापी में। Oromotor therapy works on the sensory issues, but oral placement therapy also works in a structural oral and speech-related oral part also. Sensory feeding. Sensory feeding एक ऐसी थेरापी है कि जिसमें सेंसरी इश्यूज को इवेल्यूट करने के बाद सेंसरी इश्यूज को पॉइंट आउट करके कैसे उस पर वर्क करते हैं, फीडिंग रिलेटेड इश्यूज, च्यूइंग हो गया, स्वेलोइंग हो गया वगैरह वगैरह पे वर्क होता है सेंसरी फीडिंग में। फिर आता है सेंसरी मोटर अप्रोच टू अप्रेक्सिया। जो अप्रेक्सिक स्पीच होती है, अप्रेक्सिक वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स को कैसे आर्टिकुलेट किए जाए बच्चे को और कैसे उसको इजी हो फोनीम्स और वर्ड्स आर्टिकुलेट करने में, उसके लिए प्रॉपर टूल किट आती है। वो टूल किट का इस्तेमाल करके सेंसरी मोटर अप्रोच टू अप्रेक्सिया प्रोग्राम दिया जाता है। विजन थेरापी। विजन थेरापी मतलब कि विजन के जितने भी वर्क हैं, जैसे कि देखना, आई बॉल मूवमेंट, आई ट्रैकिंग, आई फोकसिंग, कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजों को, विजन के रिलेटेड सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके उस पर वर्क किया जाता है और कैसे हमारा विजन और हमारा विजुअल परसेप्शन एक साथ मिलके पावरफुल हो सकती है, उसके ऊपर बेस थेरापी है विजन थेरापी। फिर आता है वास्टिबुलर रिहेबिलिटेशन। वास्टिबुलर यानी कि हमारा ईयर में एक फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं वास्टिबुलर फ्लूइड, जो हमारी बैलेंसिंग, वॉकिंग, बॉडी पोजिशनिंग, बॉडी अवेयरनेस वगैरह पे वर्क करता है। और वो सभी चीजों पे वो प्रॉपरली तभी हो सकता है जब हमारा वास्टिबुलर सिस्टम रेगुलेटेड हो या सिस्टमैटिक हो। तो वो सब रेगुलेटेड और सिस्टमैटिक रखने के लिए वास्टिबुलर रिहेबिलिटेशन थेरापी यूज होती है, जिसमें ज्यादातर मूवमेंट एक्टिविटी एंड हाइट रिलेटेड एक्टिविटी एंड वाइब्रेशन एक्टिविटी ज्यादा होती है।
देन ऑडियो विजुअल थेरापी। ऑडियो विजुअल थेरापी 2 कैटेगरी के बच्चों में यूज होती है। एक, जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हो, और दूसरे जो ऑडिटरीली इम्पेयर्ड हो। जो ऑडिटरीली इम्पेयर्ड होते हैं उन्हें विजुअल स्टिमुलाई दे दे के लैंग्वेज एंड स्पीच सिखाई जाती है, और जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उन्हें ऑडिटरीली इम्पेयरमेंट, ऑडिटरीली स्टिमुलाई दे दे के उन्हें लैंग्वेज ऑडिटरीली सिखाई जाती है। तो ऑडियो विजुअल थेरापी में ऑडियो एंड विजुअल दोनों सेंस का इस्तेमाल करके बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कूलिंग सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी, यानी कि स्कूल में होने वाले बच्चों के ज्यादातर स्कूलिंग रिलेटेड इश्यूज इसमें आ जाते हैं, जैसे कि हैंड राइटिंग इश्यूज, रीडिंग राइटिंग इश्यूज, ब्लैक बोर्ड पे से कॉपी करना, लास्ट बेंच पे से फोकस करना, टीचर की आवाज सुन के कॉपी करना, या फिर एग्जाम में स्पीच में लिखना। वो जितनी भी सारी प्रॉब्लम है वो सारी आ जाती है, स्कूल रिलेटेड सारी प्रॉब्लम स्कूलिंग एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी में। थैंक यू टू लिसनिंग मी। एंड अब आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। Thank you, doctor, for this amazing explanation of sensory integration and all the segments of our human body, which as a teacher and parent we ignore. अगर हम देखते हैं बच्चा नहीं पढ़ता है तो हम बोलते रहते हैं बच्चा नहीं पढ़ता है, पर उसके 100 और कारण हो सकते हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। और Right. ये सेशन आई एम श्योर मेरे टीचर्स एंड पेरेंट्स को बहुत यूजफुल रहा है, जिससे उनका देखने का नजरिया बच्चों के प्रति अब बदल जाएगा, और वो ये सारी छोटी चीजें पे ध्यान देकर they can guide the parent to the right occupational therapist for this. Thank you so much for your session. Yes, if you have a question, can you please Ma'am, raise may your I? hand or ask? Yeah, Bhageshri. Yeah, thank you very much for a wonderful session, sir. I was really looking out something like this. I'm dealing with a child right from a second and a third standard now, who is in seventh now. So because of the 2 years gap, he was not with me. He doesn't, now the teachers complain he doesn't talk at all in the class. Plus, right from the beginning, he couldn't pronounce r. Plus blends. When I started dealing with the second and third standard, he never used to pronounce blends, blur, clur, br, fr. Now, and he Okay. has the same problem now. At the same time, whenever we talk to him or anybody ask him any question, he takes time to respond. Okay. So even I observe he takes time, he think, then he give only 1 or 2 liner answers, and he's just comfortable only with me. He's using maximum language only with me. And in school, the now the 7th standard teacher is complaining he doesn't talk at all. We may have to remove the child. Sir, can you come on the camera, please? If the presentation is not required for you all, that would be wonderful. तो हो सकता है कुछ सेंसरी इश्यूज हो, उसकी वजह से उसकी स्पीच क्लैरिटी या फिर वो ब्लेंड्स जो आप बोल रहे हैं वो क्लियर ना हो, या फिर और वो जो डिले रिस्पॉन्स करता है उसका रीजन भी सेम होता है, क्योंकि ऑडिटरी सिस्टम या फिर कॉग्निटिव सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग हो सकता है, हाइपो सेंसिटिव हो सकता है। Okay, but then what? How should I tell this to the parents? Ki what they are supposed to do? Because this is a very tricky thing. Then to convince parents or to really tell them that I feel something like that. This part is very tricky to deal with them. So what should be Right. the what should we have to tell parents if we find out something like that? Show them the behavior of child. ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर पे वर्क करना है, और ये बिहेवियर पे वर्क करने के लिए हमें ये थेरापी करनी पड़ेगी या ये चीज करनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स को डायरेक्टली मत बोलो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका बिहेवियर, क्योंकि सेंसरी एंड में तो हमें बिहेवियर ही दिखता है। तो टारगेट द बिहेवियर एंड देन टेल कि बिहेवियर को रिप्लेस करके हमें कुछ सिखाना है, तो बिहेवियर को रिप्लेस हम इस थेरापी की मदद से या इस मेथड की मदद से कर सकते हैं। तो कभी डायरेक्टली ऐसा मत बोलो कि सेंसरी इश्यू है या फिर उसको स्पीच रिलेटेड इश्यूज हैं। टारगेट द बिहेवियर। Okay, thank you, sir. Anybody else? Swapna, you had a question? Yes. Sir, we still can't see you.
अगर हम आपको देख पाते तो बहुत अच्छा होता. Yeah, that's better. Sony, yes, you can ask a question. Okay, Yes, Pooja. sir. Yeah, yes, Okay. Sony. May I? Yeah, please. Yeah. Can you also come Sir, on camera? so I just want to understand few of the generalized home-based activity which can cater the sensory diet needs of the child. तो अगर As I already mentioned that my child shows many of these things, but it is not at all consistent. Sometimes it will be shown up after 6 months also. Sometimes some behaviors are showing up in 15 days. Some are recurring in 2 months. So I am not sure what to do. तो अगर उसका जो बिहेवियर आपको दिख रहा है अंडर रिस्पॉन्सिव है या फिर ओवर रिस्पॉन्सिव है, उसके अपोजिट बिहेवियर के रिलेटेड आपको एक्टिविटी क्रिएट करनी है. जैसे कि अगर वो मेसी चीजों को टच ही नहीं करना चाहता है तो क्रिएट द एक्टिविटी मेसीनेस. Okay. उसको वो स्टिमुलस देना है. दूसरा कि अगर उसे प्रेशर लेने में दिक्कत हो रही हो या फिर वो लेता ही ना हो, तो एक काम करो कि एक्टिविटी ऐसी बनाओ जैसे हैवी बॉल हो, वो लेके उसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़े, या फिर बॉल पे कुछ आप हाइटेड लगा दो जिसकी जो उसे ज्यादा प्रेशर दे के अपने पैर पे खड़ा होकर उसको लेना पड़े वगैरह. ओके. और अगर हाइपर हो तो? बिहेवियर की एक्टिविटी. ओके सर, अगर हाइपर हो तो? अगर हाइपर हो तो अवॉइड. अंडर हो तो ये कर सकते हैं, पर हाइपर हो तो जस्ट अवॉइड. सर, ही इज हाइपर विद डायग्नोसिस ऑफ ADHD. तो प्रॉपर सेंसरी डाइट, उसका सेंसरी सिस्टम पूरा सेंसरी डाइट बनाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा क्यों सेंसरी इश्यूज हैं और किस लेवल पे और क्या है. ओके सर, घर में रेगुलेटेड है, ट्रांजिशन के टाइम बिहेवियर्स आ रहे हैं और मेनली वो इश्यूज उसके सेंसेस के साथ ही दिख रहे हैं. बात थोड़ी ब्रेक होती है. मैंने कहा कि घर में काफी रेगुलेटेड है बच्चे का बिहेवियर. ओके. और सेल्फ रेगुलेशन भी बहुत अच्छा है घर के अंदर, बट जब ट्रांजिशन होता है कहीं बाहर स्कूल में बोलिए या कोई न्यू जगह पे जब जाते हैं ना, तब वहां पे ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है. जैसे कहीं भीड़ भड़ाके वाली जगह हो गई या उसके दो टच रीजन हो गया. जी. उसके दो रीजन हो सकते हैं. एक तो ट्रांजिशन इश्यूज हो सकते हैं, प्योर ट्रांजिशन बिहेवियर ट्रांजिशन इश्यूज, या फिर घर में उसको सेंसरी इश्यूज है, इस जगह पे ये सेंसरी इश्यूज ट्रिगर होने वाले हैं तो ये चीजें अवॉइड करो. तो घर उसके लिए बटर लाइन है, इसमें उसको पता है कि मैं कौन सी जगह पे क्या करूंगा तो क्या बिहेवियर ट्रिगर होगा. और बाहर सब न्यू आता है तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि मैं क्या करूं तो क्या ट्रिगर होगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स. Okay. Thank you so much, sir. It's really helpful. I would like to add, Sony, before transition, the child needs preparation. So if you know that there सर is ने a अभी वही change, कहा, मैंने भी पकड़ा वो पॉइंट कि maybe he needs to be aware of what he is going to get in the he transition, needs a right? lot of preparation, duration, area, environment. And if we are taking a child to a place where we know all the other people, even they need that preparation, that they do not they do not do any behavior by which the child can be triggered. That kind of Yes, preparation can ma'am. really help. Actually, I am struggling there only. I mean, how to convince other people about Go these issues. slow, That is but my main. continue doing. Yes. It's a Thank process, you so much, Sony. ma'am. Whole Yeah. life का process है ये, चलता ही रहेगा. It only thing is ADHD children start behaving, are more stable as they grow older in age, right, sir? जैसे टीनेज Yes. पहुंचते हैं तो उनकी ये फिजिकल मूवमेंट हाँ. कम हो जाती है, मेंटल मूवमेंट तो रहती ही है, Right, बट right, एटलीस्ट right. फिजिकल मूवमेंट कैन बी डाइवर्टेड इनटू मेनी Right. अदर एक्टिविटीज. थैंक या यू. इसका Yes. Thank you so much, ma'am, for adding your views. डिवाइड कर सकते हो आप. एक एक्टिविटी है तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड करके उसे दे दो तो उसके लिए इजी रहेगा.
Don't हाँ expect सर, him to घर do में मैं at वही the करती same हूँ, time. घर में उसको मैनेज करना मैंने सीख लिया है, मेरे साथ अब उसके कोई इश्यूज नहीं होते हैं। Wonderful. लेकिन यही है कि ट्रांजिशन मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि मैं दूसरे लोगों को नहीं समझा सकती इसके साथ कैसे डील करना है। तो उसे प्रिडिक्ट करके रखो Trying, but कि आप बाहर जाओगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है। जी Yeah. जी सर, आई गॉट दैट पॉइंट, दैट वाज द हाईलाइट So, फॉर मी। Swapna, you can ask a question. Good evening, sir. Thanks for such a wonderful session on sensory Can integration. you come on camera, Swapna? Good evening, sir. Sir, I have a child who has vocal stimming. So either child will be many times he'll be making different sounds or whistling or spitting. So in spite of we giving lot of disciplinary activities, but still the child will do the continue without his subconscious mind. So what are the activities we can give for the child for the vocal stimming? Can you repeat the question because Okay, sir. voice is breaking. Is it raining in your area, Swapna? It's not now. पता नहीं आवाज बहुत आ रहा है इसलिए even we couldn't hear your question clearly. Could you be a little louder and slower? Yeah, I have a child who's of 6.5 years. Okay, he'll come for my classes, remedial classes. He has a vocal stimming. Okay. Either he'll be making different sounds. Because of that, he is getting disturbed and he is not able to concentrate on the classes or education or writing and reading. So, what are the activities we can give to him? Anyhow, he is going for OT for this vocal stimming. But how in a remedial class, how do as an educator I can handle him? हाँ, वो आवाज जो निकालता है वो शायद हो सकता है कि वो ऑडिटरी बिहेवियर उसका सेंसरी और वो खुद के एनवायरमेंट में से आवाज नहीं मिल रही है, वो क्या करता है कि खुद से आवाज निकालना स्टार्ट करता है तो उसको ऑडिटरी सिस्टम को वो साउंड मिले। तो आप क्या करो कि हेडफोन लेके उसे 5-10 मिनट के लिए वियर्ड वियर्ड साउंड सुनाओ, जिसके बाद उसका वो सेंसरी सिस्टम फुलफिल हो जाएगा। जैसे ही अगर सेंसरी पैक फुल हो गई तो उसके बाद वो क्या करेगा कि वो काम डाउन हो जाएगा। तो फिर नाउ फॉर 1 मिनट उसे कामिंग म्यूजिक, अल्फा बीटा म्यूजिक जो आता है काम म्यूजिक, वो सुनाओ और वो एक प्रॉपर 1 मिनट के सेशन के बाद एकेडमिक पे ट्रांसफर हो जाओ। मे बी ही कैन वर्क बेटर। Okay, sir. Thank you, sir. I have one more query. If the child has oversensitive with loud sounds, just like by listening cooker sound or mixie sound, he will just close his ears and he'll यस, start screaming. So ओके। again, as an educator, how do I handle when the child is getting scared of such sounds, over sounds? Immediately remove child from that environment, but how to reduce that behavior? बिहेवियर रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ग्रेजुअली उसे उस साउंड के साथ एडिक्वेट करना पड़ेगा। यानी कि पहले स्लो साउंड, सेम साउंड स्लोली, फिर बॉडी 5-10 करते करते उसको नेचुरलाइज आवाज तक ले जाना है। और स्लोली स्लोली जैसे वो एक लेवल पे एडजस्टेबल हो तो दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे, फिर थर्ड लेवल पे, बट एवरी डे एंड एवरी टाइम द साउंड शुड बी सेम। Should be same. Okay. Okay. अगर आप मिक्सी का आवाज ले रहे हैं, आप अभी और यूट्यूब पे से वीडियो निकाला और जैसे कोई वीडियो ए था मिक्सी का साउंड का और दूसरे दिन आपने बी निकाला तो चाइल्ड एकदम कंफ्यूज कि मुझे क्या सुना रहा है। तो ऑलवेज वीडियो ए, तो स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो ए जब तक उसके साथ तो कंफर्टेबल ना हो जाए, बट ग्रेजुअली इंक्रीज द वॉइस। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Great. Anybody else? You have a question? Ma'am, I would like to ask Vanita here. Yeah, Vanita. Yes. Sir, thank you so much for this wonderful session. Amazing. So I have two queries. Number one is, I have children who come who are in senior KG and Vanita, your voice is cracking. We are not able to, I'm not able to hear you clearly. Okay, ma'am. Is it clear now? Better, better. Much better.
Are you there, Vanita? Them like, they like to jump a little, or they constantly We didn't moving hear their anything. hand a little. We couldn't hear anything what you said till now. Can you restart, please? Ma'am, is it clear? I am outside now. Yes. Is it clear? Yeah. Yes. So I have two children who come to me for a remediation program, and Okay. they constantly like move their hand or moving their legs, something like that. So I want to know that as a child in senior KG and first standard, is it a kind of normal behavior? We can take it a normal behavior, or they have sensory issues, and we should look into it. लेवल पे वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल है या सेंसरी इश्यूज हैं। क्योंकि अगर वास्टिबुलर स्टिकिंग बिहेवियर है तो कॉन्स्टेंटली अपने हाथ पैर या गर्दन कुछ भी हिलाता रहेंगे, पर वो किस लेवल पे हिला रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में हिला रहे हैं, कितने टाइम तक हिला रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए हिला रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका सेंसरी स्टिकिंग बिहेवियर है या नहीं है। This is a basic sign Okay. of particular sensory seeking behavior. But कितनी frequency है और कितनी नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Okay, sir. So it has nothing to do with childhood age and it will pass away. वैसा नहीं. नहीं। Okay. Okay. So that's what Vanita sir is trying to say. This is actually a very good question, and the answer sir has said very well is we as educators have to observe the frequency of that behavior. If it is happening just once in a while, and the child will overcome it. But if it is repeatedly happening, for how long is it happening during the day? How many times it is happening during the day? What are the situations in which the child responds like this? So you have to make a record of all this. Then only you can make a claim that yes, this is something which is a child is struggling with and repeatedly happening. Only then you can guide a parent to go to a OT specialist or go to somebody and get the assessment done. So your observation needs to be at least 2 weeks to a month, right, sir? Yes. Some proper data before you can communicate to a parent to go to an expert to get the child assessed. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And there's one more question, because I am in touch with many youths as well, like the ones who are completing 12th standard and all. So this seems like a very good field to work in. So I just want to know that what are the courses that young children can do that they can become sensory integration therapist. Occupational therapist, I know they have to do OT, but specifically like you have talked about sensory integration therapist. So just wanted to know. It is a part of occupational therapy. After occupational therapy, you can do sensory integration therapy or sensory behavior therapy. Okay. First, okay. they have So to do MBBS. No. 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 So after 12th, what course? What is that they After have to 12, you can do 4.5 year course in occupational therapy. Then you can do a PG diploma or diploma in sensory integration or sensory therapy. Okay. Fantastic. That's a good question, Vanita. And it's a wonderful question it's a wonderful information for everybody to share it to others. Do they need science in class 12? Yes, of course, Yes. they need science. Science with biology. Science with biology. It's just equivalent to taking medicine. Perfect. thank you, sir. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. Anybody else? The last question, because sir has already given us a lot of time. If no questions, then can somebody come and share about their learnings today? Ma'am, Any I raised volunteer? my hand. Yeah, sorry, because of this mobile or something, I'm not able to. Yeah. Shubha. Yeah. Hello, sir. Thank you for this wonderful session. I have a question. A 5-year-old child comes to me for remediation, and he cannot pronounce R sound. So, is there any activity where we can do in the sessions where we can improve his the sound correct to help him to say the correct sound? Is there any activity like that? First, observe his jaw, lip, and tongue movement. Jaw, lip, and tongue movement. And during the L, how can we produce
साउंड हम कैसे जॉ, लिप और टंग की मूवमेंट करते हैं ड्यूरिंग द साउंड, वो पहले ऑब्जर्व करो, फिर वो कैसे करता है वो ऑब्जर्व करो, और हमारे और उसमें क्या डिफरेंस, वो डिफरेंस करने के बाद वो डिफरेंस पे वर्क करो। Did you get it, Shubha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. And this is not only for letter R or R. The answer is applicable to every syllable or every sound for any language. In fact, observe what we do as normal people speaking. What is exactly the movement of these three organs? Jaw, lip, and tongue. See it well on the camera, I mean on the mirror for yourself. Observe how the child's movement is different from ours, and then probably help the child to make that particular movement. Instead of asking the child to say ra bolo, sa bolo, pa bolo, वो नहीं करवाना, right sir? उनसे वो Yes. exercise कराना जिसका result pa sa ma ra ta निकलेगा आगे जाके. Wonderful, wonderful Thank you. answer. Thank you, Thank ma'am. you so much, sir. Anybody else? I would like somebody to come and close the session with a nice thank you note and your learnings. Who's going to come this time? Quickly. Volunteers, please. May I? Always. Ruchi is always there. Yes. So, you don't know what I have learned today. I mean, I Okay, have Soni. been seeking for this, and you have given a wonderful session. You don't know what you have done today to all of us. In some way, I think all the educators, all the parents have seen some of these things in our kids. So it was such an informative session, and it will definitely add value to us. Thank you so much for being there, and thank you so much, Bala ma'am, that every time you're mesmerizing us with, bringing these kind of informative sessions to us. So thank you once again. Wholehearted thank you to you. I'm actually grateful to people when I connect and just give them a call. Like I have never met, seen, spoken to Dr. Yash before this session. I only called him once because I got a reference of him to somebody and he immediately said yes. He doesn't know who I am. I don't know who he is in detail. He just said yes. That's all. So I am grateful to all these great experts who come to our platform and share without asking, without, no business, no money, nothing. Everybody does voluntarily with a great heart. So thank you so much. And thank you to all of you who are dedicatedly working. And I'm sure people who have joined this platform last 1 year, 2 year, 1 year, 6 months, 3 months have grown as a person. Yes or no? Have you Yes. all grown as human? Have you all grown as teachers? Have you all grown as mothers? If yes, please come on the camera and show your faces how you have grown and give a Ma'am, smile. basically it has changed the perception, the focus, and the different aspects of looking at a child, that has changed. And sir, something very I'm very curious to know your age, because you are very, very young. Dr. Desai's age? Yeah. Because I be looking at the wonderful presentation you have given. It was so professional and so useful and practical, basically, for us. So I have just noted down the points, the different topics. Yeah, now I have to go on Google and search on this. So it was very, very professional. Agree to it, ma'am. It was very thorough. Thank you very much. I would like to add a few lines on it. This is the topic where I was looking for many days, in fact. And yes, sir, like he has given very wonderful information about this topic, and it is in-depth information. Wherein, if we search in as a Google, it will be a very vast, and we will not be able to understand head or tail. But he has compiled everything and is given in within a short period, and he has given enormous energy and with lots of information. Thanks a lot for your information, sir. Now you are all excited to go to Google and research. Yes, more. exactly. That's what has happened now, actually. It's reversed. Actually, work will Dr. start Yash, now only. Ma'am, Dr. people Yash like Desai. me, Yeah. people like Yeah, me, Ruchi. people like me Googled what is occupational therapist. Didn't know. Didn't know. The title itself. So you are started from alphabet A. Wonderful.
And what I appreciate is you always accept what you don't know and how you would love to grow in all these areas. Great. So Dr. Yash, if you wish to share something more, or if any one of them want to connect with you, because you do some courses, you have told me, for teachers or for parents, you could share about that to us. Dr. Yash, am I audible? Yes. Yeah, if you want to share about yourself, in the sense what kind of courses you do, and if somebody wants to take training from you on this, we would love to get your number, or if there's some link by which they can connect with you. Okay. Your voice is breaking, so I can't get it. Yeah, Excuse me, I can't Vanita, understand. Vanita, can you please mute yourself there? Yeah, I'll mute Vinita. Okay. Sir, I'll repeat. I just said if there's anybody who wish to connect with you, because you told me you're doing some online courses for teachers or parents. They want to learn about OT strategies or sensory integration strategies from you. Could you share your number? Would you like to share your number or some link by which they can associate with you? Yes, sure. Sorry to disturb you, ma'am, as well as what is the qualification you needed for that? Do you need it from a science background or a biology or something like that? Yes. That's what he said, yes. Yeah, Dr. Desai. Was I clear? Was I audible? Yes. आप जो कोर्सेज करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं या नंबर शेयर करना चाहते हैं, यू वेलकम टू डू दिस. मेरे प्लेटफॉर्म में अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 200 मेंबर्स हैं, और अगर उनको आपसे फायदा होगा, नथिंग लाइक इट, बिकॉज इन सब ने अपना मिशन लिया है बच्चों की लाइफ बदलना. सो आई जस्ट एनकरेज एवरीबडी टू कीप लर्निंग. Basically, I am working with a child with 0 to 18 years, and I am providing oral placement therapy, occupational therapy, sensory integration therapy, hand therapy, cognitive behavioral therapy, and schooling, SI and schooling behavior. और सेंसरी मॉडिफिकेशन थेरापी भी मैं देता हूँ. और मेरी एक संस्था है जिसका नाम है इग्नाइट चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, सूरत में. So, would you like to share your number? Can I share your number? Yes. ताकि कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे तो देखो. All right, 9674942590, Dr. Yash Desai. Fantastic. So thank you so much, Dr. Yash Desai, for this amazing session. We look forward to connecting with you again. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you, ma'am, for providing me this great opportunity. और आपने जो ये मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको तहे दिल से. मैं आपको पर्सनली मिलने आ रही हूँ soon. Okay. Thank you.